हेलो एवरीवन। आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएचई फर्स्ट सेमेस्टर जनरल इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के लिए पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे, जो हमारी बुक है द मैनी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। उसका चैप्टर 3 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द जेंटलमैन ऑफ द जंगल। ये आप देख रहे होंगे चित्र में। द जेंटलमैन ऑफ द जंगल में मतलब ठीक गाँव का आदिवासी है, उसके घर के अंदर मतलब आती हो गया, मतलब आके मतलब ऐसा ही है, मतलब जो कहानी है ना, स्टोरी है ना, मतलब द जेंटलमैन ऑफ द जंगल जो स्टोरी है ना, इसमें भी ऐसे ही है, मतलब कि कोई आती है, मतलब पानी से बचने के लिए घर के अंदर आके सो जाता है। मतलब कि हम पढ़ेंगे अभी कहानी में जो हमारी है स्टोरी दी हुई है। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली नई क्लासों की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। स्टोरी पढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, मतलब कि मैं जो हमारे जो लेखक है, मतलब जो मुझे आता कि कहानी जंगल के सर्जन में सबसे महत्वपूर्ण पात्र नायक के रूप में मनुष्य और खलनायक के रूप में आती है। मतलब खलनायक के रूप में जो है हमारा दुश्मन के रूप में मतलब एक बार दे सकते हैं, वो आती है। मतलब कि कहानी में अन्य जानवर भी कुछ भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे सभी अंततः मनुष्य के साथ आती के अन्यायपूर्ण संघर्ष में उसका साथ देते हैं। मतलब कि मनुष्य के साथ आती के अन्यायपूर्ण संघर्ष में उसका साथ देते हैं। मतलब हम कहानी देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारी जो कहानी है द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, जोमो टेनियाटा टेनियाटा मतलब कविता के लेखक का नाम है, आप याद रखें, पेपर में पूछ लिया जाता है कभी भी। तो हमारी कहानी है, स्टोरी है, जो मैं आपको बताऊँगा सुनाऊँगा मतलब मोबाइल से द्वारा। तो मेरी इंग्लिश में थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं है, जिससे आपको शब्द से समझ नहीं आएंगे। तो मैं आपको मोबाइल जाता है, मतलब थोड़ा सुनाऊँगा, मैं इसको पढ़ाऊँगा, मतलब कि सुने। Written by an African author, Jomo Kenyatta, the story, The Gentleman of the Jungle, is in the form of a fable. A fable is a narrative which carries a moral meaning. This story is about the lore of self preservation and the danger of friendship between unequals. It is also the story of the imperial domination of the white races who entered the countries they colonized as friends and took it upon themselves to protect those who were less powerful than them, people who were less adequately endowed with teeth and claws, thus taking away their freedom. The human man is treated unfairly by the animals of the jungle, who throw him out of the successive huts he builds, and who cheat him of his rights by their arguments about proper use of space. Finally, the man realizes that he can get out of their clutches only by trapping them through his intelligence and by dividing them by creating rivalries between them through rival claims. The moral of the story is if you wish to protect your interests, you have to tap your own resources. You can draw on other morals as well, such as divide and rule, or brains are stronger than brawn. Once upon a time, an elephant made friendship with a man. One day, a heavy thunderstorm broke out. The elephant went to his friend, who had a little hut at the edge of the forest, and said to him, "My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain?" The man, seeing what situation his friend was in, replied, "My dear good elephant, my hut is very small, but there is room for your trunk and myself. Please put your trunk in gently." The elephant thanked his friend, saying, "You have done me a good deed in." The elephant thanked his friend, saying, "You have done me a good deed in." One day I shall return your kindness. But what followed? As soon as the elephant put his trunk inside the hut, slowly he pushed his head inside, and finally flung the man out in the rain, and then lay down comfortably inside his friend's hut, saying, "My dear good friend, your skin is harder than mine. And if there is not enough room for both of us, you can afford to remain in the rain while I am protecting my delicate skin from the hailstorm." The man, seeing what his friend had done to him, started to grumble. The animals in the nearby forest heard the noise and came to see what was the matter. All stood around listening to the heated argument between the man and his friend the elephant. In this turmoil, the lion came along roaring, and said in a loud voice, "Don't you all know that I am the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom?" On hearing this, the elephant, who was one of the high ministers in the jungle kingdom, replied in a soothing voice, and said, "My lord, there is no disturbance of the peace in your kingdom. I have only been having a little discussion with my friend here as to the possession of this little hut which your lordship sees me occupying." The lion, who wanted to have peace and tranquility in his kingdom, replied in a noble voice, saying, "I command my ministers to appoint a commission of inquiry to go thoroughly into this matter and report accordingly." He then turned to the man and said, "You have done well by establishing friendship with my people, especially with the elephant, who is one of my honorable ministers of state.
Do not grumble anymore. Your hut is not lost to you. Wait until the sitting of my imperial commission, and there you will be given plenty of opportunity to state your case. I am sure that you will be pleased with the findings of the commission. The man was very pleased by these sweet words from the king of the jungle, and innocently waited for his opportunity, in the belief that naturally the hut would be returned to him. The elephant, obeying the command of his master, got busy with other ministers to appoint the commission of inquiry. The following elders of the jungle were appointed to sit in the commissine. 1. Mr. Rhinoceros. 2. Mr. Buffalo. 3. Mr. Alligator. 4. The Right Honorable Mr. Fox to act as chairman, and 5. Mr. Leopard to act as secretary to the commission. On seeing the personnel, the man protested and asked if it was not necessary to include in this commission a member from his side. But he was told that it was impossible, since no one from his side was well enough educated to understand the intricacy of jungle law. Further, that there was nothing to fear, for the members of the commission were all men of repute for their impartiality in justice, and if they were gentlemen chosen by God to look after the interests of races less adequately endowed with teeth and claws, he might be rest assured that they would investigate the matter with the greatest care and report impartially. The commission sat to take the evidence. The Right Honorable Mr. Elephant was first called. He came along with a superior air, brushing his tusks with a sapling which Mrs. Elephant had thrown with, and in an authoritative voice said, "Gentlemen of the jungle, there is no need for me to waste your valuable time in relating a story which I am sure you all know. I have always regarded it as my duty to protect the interests of my friends, and this appears to have caused the misunderstanding between myself and my friends here. He invited me to save his hut from being blown away by a hurricane. As the hurricane had gained access owing to the unoccupied space in the hut, I considered it necessary, in my friend's own interests, to turn the undeveloped space to a more economic use by sitting in it myself, a duty which any of you would undoubtedly have performed with equal readiness in similar circumstances." After hearing the Right Honorable Mr. Elephant's conclusive evidence, the commission called Mr. Hyena and other elders of the jungle, who all supported what Mr. Elephant had said. They then called the man, who began to give his own account of the dispute. But the commission cut him short, saying, "My good man, please confine yourself to relevant issues. We have already heard the circumstances from various unbiased sources. All we wish you to tell us is whether the undeveloped space in your hut was occupied by anyone else before Mr. Elephant assumed his position." The man began to say, "No, but at this point the commission declared that they had heard sufficient evidence from both sides and retired to conceal their decision. After enjoying a delicious meal at the expense of the Right Honorable Mr. Elephant, they reached their verdict, called the man and declared as follows: "In our opinion, this dispute has arced through a regrettable misunderstanding due to the backwardness of your ideas. We consider that Mr. Elephant has fulfilled his sacred duty of protecting your interests. As it is clearly for your good that the space should be put to its most economic use, and as you yourself have not reached the stage of expansion which would enable you to fill it, we consider it necessary to arrange a compromise to suit both parties. Mr. Elephant shall continue his occupation of your hut, but we give you permission to look for a site where you can build another hut more suited to your needs, and we will see that you are well protected." The man, having no alternative, and fearing that his refusal might expose him to the teeth and claws of members of the commission, did as they suggested. But no sooner had he built another hut than Mr. Rhinoceros charged in with his horn lowered and ordered the man to quit. A royal commission was again appointed to look into the matter, and the same finding was given. This procedure was repeated until Mr. Buffalo, Mr. Leopard, Mr. Hyena, and the rest were all accommodated with new huts. Then the man decided that he must adopt an effective method of protection, since commissions of inquiry did not seem to be of any use to him. He sat down and said, "Nendathi endagaga motegi," which literally means that there is nothing that treads on the earth that cannot be trapped, or in other words, you can fool people for a time, but not forever. Early one morning, when the huts occupied by the jungle lords were all beginning to decay and fall to pieces, he went out and built a bigger and better hut a little distance away. No sooner had Mr. Rhinoceros seen it than he came rushing in, only to find that Mr. Elephant was already inside, sound asleep. Mr. Leopard next came to the window. Mr. Lion, Mr. Fox, and Mr. Buffalo entered the doors, while Mr. Hyena howled for a place in the shade and Mr. Alligator basked on the roof. Presently they all began disputing about their rights of penetration, and from disputing they came to fighting, and while they were all embroiled together the man set the hut on fire and burnt it to the ground, jungle lords and all. Then he went home, saying, "Peace is costly, but it's worth the expense, and live happily CVER after."
Photo taken at 03 August 2026, 16 hours 27 minutes and 38 seconds. ये अभी आपने सुना मोबाइल की ज़्यादा से अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है द जेंटलमैन ऑफ द जंगल। अब मैं आपको इसका जो हिंदी अर्थ है मतलब कि वाक्य मतलब ये पढ़ा है को ज़रा बताऊँगा आपको मैं ज़्यादा तो जो मतलब कि वाक्य है ना मतलब शब्द बाय शब्द नहीं करी मतलब थोड़ी मतलब आप थोड़े मतलब आपको समझ में आए कि मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ बना के मतलब इसका तो मतलब बताया मैं आपको मतलब सीधा इसकी हिंदी नहीं करी मैंने आपकी यहाँ पर मतलब बाग एक बात दो एक बात तीन करके मैंने इसको ना थोड़ा समझाया जिससे आपको थोड़ा चाहे ये कहानी थोड़ा समझ में आए वरना ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो सीधा मतलब ऐसा हिंदी करेंगे ना तो थोड़ी आपको समझ में आएगी। इसमें थोड़ा पात्र के अनुसार थोड़ा को सिस्टमेटिक तरीके मतलब क्रम बाई मतलब जमाया मैंने पहले हम उनकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे उसके बाद उनका समरी देखेंगे मैं थोड़ी बाद में दो समरी मैं दिखाई है आपको मैंने अभी दिखाऊंगा आगे मैं आपको। एक तो हमारी जो मैंने बनाई है खुद ने और एक जो हमारी 1B स्ट्रीम दी हुई है दोनों देखेंगे हम समरी। पहले हम मतलब एक ही व्याख्या देख लेते थोड़ी मतलब हिंदी अर्थ जो है इसका वो देख लेना थोड़ा। ये कहानी बहुत लंबी है इसलिए एक ही उत्तर में पूरी का अनुवाद देना संभव नहीं है जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है इसलिए मैं इसे भागों में दूंगा ताकि कोई हिस्सा टूटे नहीं और आपको परीक्षा की तैयारी में भी आसानी हो। वैसे जो मेरा मतलब कहना है मतलब कि आपके भाग एक बताओ ना वो शुरुआत मतलब जो है हमारी जंगल के सर्जन द जेंटलमैन ऑफ द जंगल इसका अर्थ मतलब कि जंगल के सर्जन। देखिए लेखक है जोमो चैयाटा जो मैंने आपको बताया। ये कहानी एक अफ्रीकी लेखक जोमो चैयाटा द्वारा लिखी गई है। यह एक नीति कथा फेबल है। नीति कथा वह कहानी होती है जिससे कोई नैतिक शिक्षा मिलती है। ये कहानी आत्मरक्षा सेल्फ पहले ना भी एक शिक्षा लिखा हुआ है तथा असमान लोगों की मित्रता के खतरे के बारे में बताती है। साथ ही यह उन चेत उपनिवेशवादियों का प्रतीकात्मक चित्रण भी करती है जो दूसरे देशों में मित्र बनकर आए हैं लेकिन बाद में उन्हीं लोगों की स्वतंत्रता छीन ली। आगे मतलब इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपका ये रहा। कहानी में मनुष्य के साथ जंगल के जानवर अन्याय करते हैं। वे उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लेते हैं और तरह तरह के तर्क देकर उसके अधिकार छीन लेते हैं। अंत में मनुष्य अपनी बुद्धि से जानवरों को आपस में लड़ाकर उनसे छुटकारा पा लेता है। ये हमने देखा थोड़ा मतलब का कहानी बारे में। अब थोड़ा आगे देखेंगे। कहानी का मुख्य संदेश मतलब कि में है अपने हितों की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। फूट डालो और राज करो देसी नीति भी कहानी में दिखाई गई है। कहानी अब देखेंगे हम आगे। एक समय की बात है एक हाथी और एक मनुष्य में जरी मित्रता थी मतलब की। एक दिन तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। हाथी अपने मित्र की जंगल के किनारे बनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा और बोला प्रिय मित्र क्या मैं अपनी सूंड तुम्हारी झोपड़ी के अंदर रख सकता हूँ ताकि वह बारिश से बच जाए। इसी में मतलब मनुष्य ने कहा मेरे प्रिय हाथी मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है लेकिन इसमें तुम्हारी सूंड और मेरे लिए जगह है। तुम अपनी सूंड धीरे से अंदर रख सकते हो। हाथी ने धन्यवाद देते हुए कहा तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं एक दिन तुम्हारा यह उपकार अवश्य चुकाऊंगा। अब आगे। लेकिन जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड अंदर रखी उसने धीरे धीरे अपना सिर भी अंदर कर लिया फिर पूरा शरीर झोपड़ी में घुसा दिया और मनुष्य को बाहर बारिश में धक्का देकर निकाल दिया। हाथी आराम से झोपड़ी के अंदर लेट गया और बोला प्रिय मित्र तुम्हारी चमड़ी मेरी तुलना में अधिक मजबूत है। हमारी दोनों के लिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए तुम बाहर बारिश में रह सकते हो जबकि मैं अपनी नाजुक चमड़ी को ओलों से बचाऊंगा। अब आगे बात दो हम देखेंगे। इसमें मतलब चीन का आयोग और न्यायपूर्ण फैसला मतलब दिखाया गया। जब मनुष्य ने देखा कि हाथी ने उसके साथ विश्वासघात किया है तो वह शिकायत करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के सभी जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए। तभी जंगल का राजा सिंह दहाड़ता हुआ आया और बोला क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जंगल का राजा हूँ। मेरे राज्य की शांति भंग करने की हिम्मत किसने की। हाथी जो राजा का एक मंत्री था बड़े विनम्र
में बोला, महाराज कोई झगड़ा नहीं है, मैं केवल अपने मित्र के साथ इस छोटी सी झोपड़ी से स्वामित्व के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें इस समय मैं रह रहा हूँ। सिंह बोला, सच्चाई जानने के लिए एक जांच आयोग ऑफ इंक्वायरी बनाया जाएगा। आयोग पूरी जांच करेगा और न्यायपूर्ण निर्णय देगा। अब आगे पीर सिंह ने मनुष्य से कहा, तुमने हमारे लोगों विशेषकर मेरे मंत्री आती से मित्रता करके अच्छा किया है। घबराओ मत, आयोग तुम्हें अपनी बात करने का पूरा अवसर देगा। मनुष्य को विश्वास हो गया कि उसे न्याय मिलेगा और उसकी झोपड़ी उसे वापस मिल जाएगी। जांच आयोग का गठन जो हुआ आगे राजा के आदेश पर एक आयोग बनाया गया। इसमें ये सदस्य थे, गेंडा, भैंसा, मगरमच्छ, झोपड़ी, अध्यक्ष, ये मतलब जो इंग्लिश में दिया आप देख लेना, पोर्स, बपेलो, तेंदुआ, सचिव मतलब इनमें अपने इन सभी सदस्य जानवरों के मित्र थे। मनुष्य ने विरोध करते हुए कहा, क्या इस आयोग में मेरी ओर से भी किसी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन उसे उत्तर मिला, तुम्हारी ओर से कोई इतना शिक्षित नहीं है कि जंगल के कानून को समझ सके, इसलिए तुम्हारी ओर से किसी को नहीं लिया जा सकता। साथ ही उसे भरोसा दिलाया गया कि आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है और न्याय करेगा। हाथी की गवाही। सबसे पहले हाथी को बुलाया गया। हाथी बड़े गर्व से आया और बोला, महाशयो, मैं अपने मित्र के हितों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। उसने मुझे अपनी झोपड़ी को तूफान से बचाने के लिए बुलाया था। झोपड़ी में खाली जगह थी। मैंने सोचा कि उस खाली तान का उपयोग करना ही उसके हित में है, इसलिए मैं अंदर बैठ गया। ऐसी स्थिति में आप में से कोई भी यही करता। आयोग के सभी सदस्य हाथी की बात से सहमत दिखाई दिए। मनुष्य की बात दबा दी गई। अब मनुष्य को बुलाया गया। वह अपनी पूरी बात बताना चाहता था, लेकिन आयोग ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, हम पहले ही कई निष्पक्ष गवाहों की बातें सुन चुके हैं। हमें केवल इतना बताओ कि जब हाथी झोपड़ी में आया तब वह जगह खाली थी या नहीं? मनुष्य ने उत्तर देना शुरू किया, हाँ, लेकिन इतना कहते ही आयोग ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, हमें दोनों पक्षों से पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। अब हम न्याय सुनाएंगे। बात लग रहा है मना आयोग का फैसला मनुष्य की बुद्धिमानी और कहानी का अंत मतलब देखेंगे मैम। आयोग का फैसला। आयोग ने विचार विमर्श करने के बाद मनुष्य को बुलाया और अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, हमारे विचार में यह विवाद तुम्हारी पिछली जो सोच से कारण उत्पन्न हुआ है। आदि ने तुम्हारे हितों की रक्षा करने का अपना पवित्र कर्तव्य निभाया है, क्योंकि झोपड़ी की खाली जगह का सही उपयोग होना चाहिए और तुम अभी इतने विकसित नहीं हो कि उसका पूरा उपयोग कर सको, इसलिए हम एक समझौता करते हैं। आयोग ने फैसला सुनाया, हाथी उसी झोपड़ी में रहेगा। मनुष्य को दूसरी जगह नई झोपड़ी बनाने की अनुमति दी जाती है। आयोग उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार आयोग ने न्याय के नाम पर हाथी का ही पक्ष लिया और मनुष्य को उसकी अपनी झोपड़ी से वंचित कर दिया। बार बार अन्याय। बेचारा मनुष्य मजबूर होकर दूसरी जगह नई झोपड़ी बना लेता है, लेकिन कुछ ही समय बाद गेंडा वहां आता है और उस झोपड़ी पर भी कब्जा कर लेता है। फिर से आयोग बैठता है और वही पुराना फैसला सुनाता है। इसके बाद मुझे जितनी बार नई झोपड़ी बनाता है उतनी ही बार कोई ना कोई जानवर, भैंसा, तेंदुआ, लकड़बग्घा आदि उस पर कब्जा कर लेता है। हर बार आयोग जानवरों के पक्ष में ही फैसला देता है। आखिरकार सभी बड़े जानवरों के पास अपनी अपनी झोपड़ियां हो गई, जबकि मनुष्य बार बार लूटता रहा। मनुष्य की योजना। अब मनुष्य अपनी एक योजना बनाता है। अब मनुष्य समझ गया कि आयोग से उसे
कभी न्याय नहीं मिलेगा। उसने कहा, मतलब इंग्लिश वाला लिखा है, इसका अर्थ है मतलब नीचे, दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जिसे जाल में न फंसाया जा सके। अर्थात कुछ समय तक लोगों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। अंतिम घटना देखेंगे आगे। एक सुबह उसने पहले से भी बड़ी और सुंदर झोपड़ी बनाई। जैसे ही जानवरों ने उसे देखा, वे उस पर कब्जा करने दौड़ पड़े। हाथी सबसे पहले अंदर घुस गया। नीना भी पहुंच गया। तेंदुआ खिड़की से अंदर गया आया। सिंह, लोमड़ी और बेसा दरवाजे से घुस गए। लकड़बग्गा छाया में बैठ गया। मगरमच्छ छत पर चढ़ गया। अब सभी जानवर झोपड़ी के अंदर जगह और अधिकार को लेकर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा धीरे धीरे मारपीट में बदल गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर मनुष्य ने बाहर से झोपड़ी में आग लगा दी। पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई और उसके साथ सभी अत्याचारी जंगल के सरदार भी जल गए। इसके बाद मनुष्य अपने घर लौट गया और बोला, शांति महंगी अवश्य होती है, लेकिन उसकी कीमत चुकाना उचित है। इसके बाद वह सुख शांति से रहने लगा। कहानी का मुख्य संदेश मतलब में ओरल है। पहला है मतलब बुद्धि बल से अधिक शक्ति खाली होती है। दूसरा पॉइंट में असमान शक्ति वाले लोगों की मित्रता अक्सर खतरनाक हो सकती है। तीसरा पॉइंट में अन्याय के विरुद्ध केवल दूसरों पर निर्भर रहने से बजाय अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में यह कहानी उपनिवेशवाद, ये इंग्लिश में लिखा है देख लेना, का प्रतीक है, जिसमें शक्तिशाली लोग न्याय और संरक्षण के नाम पर कमजोरों के अधिकार छीन लेते हैं। ये हमने जो हमारी कहानी द जेंटलमैन ऑफ जंगल के सर्जन हिंदी में वाक्य मतलब की हो रही है। लेखक है मैं जोमो टियाटा। परिचय मैं थोड़ा दोबारा बता रहा हूँ। ये कहानी एक दंत कथा फेबल है। इसमें जानवरों के माध्यम से ये बताया गया है कि शक्तिशाली लोग अक्सर कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। ये कहानी अफ्रीका में हुए औपनिवेशिक शासन का प्रतीक है, मतलब कि एक बार से जहाँ विदेशी शासकों ने मित्रता और सुरक्षा के नाम पर स्थानीय लोगों की भूमि और अधिकार छीन लिए। अब थोड़ा हम कहानी का सवाल देखेंगे। समरी इन हिंदी जो मैंने लिखी है, मतलब वन वीक सीरीज की जो हमारी समरी है आगे है, मतलब वो आपको बताऊँगा। जो मैंने लिखी है मैंने थोड़ा पाठ को पढ़ के तो मैंने यहाँ रखी है, थोड़ा समझाऊँगा आपको। हम एक समय की बात है, एक हाथी और एक मनुष्य अच्छे मित्र थे। एक दिन तेज बारिश हो आंधी आई। हाथी ने मनुष्य से कहा कि वह अपनी टंक मतलब बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी जो छोटी सी झोपड़ी में रख ले ताकि वह भीगने से बच जाए। मनुष्य ने मित्रता से कारण अनुमति दे दी, लेकिन धीरे धीरे हाथी ने पहले अपनी सूंड, फिर उसे सिर और अंत में पूरा शरीर झोपड़ी में जुटा लिया और मनुष्य को बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि उसकी चमड़ी नाजुक है, इसलिए उसे झोपड़ी की ज़्यादा आवश्यकता है। मनुष्य ने विरोध किया। तभी जंगल का राजा शेर आया। हाथी ने अपनी बात इस तरह प्रस्तुत की कि वह निर्दोष लगे। शेर ने विवाद सुलझाने के लिए एक जांच आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया। अब आगे इस आयोग में सभी सदस्य हाथी के समर्थक थे। गेंडा, बेछा, मगरमच्छ, लोमड़ी और तेंदुआ जानवर मतलब वहाँ के। मनुष्य ने कहा कि उसकी ओर से भी कोई सदस्य होना चाहिए, जो हमने देखा भी कहानी में। लेकिन यह कहकर मना कर दिया गया कि मनुष्य जंगल से कानून को नहीं समझता। आयोग ने पहले हाथी की बात सुनी। हाथी ने दावा किया कि उसने तो केवल अपने मित्र की भलाई के लिए झोपड़ी का उपयोग किया है। जब मनुष्य अपनी बात बताने लगा तो आयोग ने उसे बीच में ही रोक दिया और बिना पूरी बात सुने हाथी के पक्ष में फैसला दे दिया। फैसले के अनुसार हाथी झोपड़ी में रहेगा और मनुष्य दूसरी जगह नई झोपड़ी बना लेगा। मनुष्य ने नई झोपड़ी बनाई, लेकिन फिर कोई दूसरा जानवर उस पर कब्जा कर लेता। हर बार नया आयोग बनता और फैसला जानवरों के पक्ष में ही जाता।
इस तरह मनुष्य अपनी झोपड़ी खो देता। अंत में मनुष्य समझ गया कि केवल न्याय की उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा। उसने एक बड़ी और आकर्षक झोपड़ी बनाई। जब सभी लालची जानवर उसे हथियाने के लिए उसमें घुस गए तो वे आपस में लड़ने लगे। उसी समय मनुष्य ने झोपड़ी में आग लगा दी। सभी जानवर जल गए और मनुष्य अपने घर लौट गया। उसने कहा कि शांति महंगी होती है, लेकिन उसकी कीमत चुकाना उचित है। लेकिन उसकी कीमत चुकाना उचित है। इसका मुख्य संदेश हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी का। पहला है, शक्तिशाली लोग अक्सर कमजोरों का शोषण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अन्याय के विरुद्ध केवल बुद्धि और साहस से ही जीत मिलती है। तीसरा पॉइंट है, अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति का चित्रण किया गया है। पांचवा पॉइंट है, बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। प्रतीकात्मक अर्थ मतलब में तम्बोनियम मनुष्य, अफ्रीका के सामान्य लोग, हाथी और अन्य जानवर, विदेशी उपनिवेशवादी शासक, झोपड़ी, अफ्रीका की भूमि और संसाधन, जांच आयोग, पक्षपाती न्याय व्यवस्था, आग, अन्याय के विरुद्ध, बुद्धिमानी और प्रतिरोध। मतलब प्रतीकात्मक अर्थ मतलब सिंबल, मतलब कि जो मनुष्य को मतलब कि अफ्रीका के सामान्य लोगों को की तरह मतलब देखा गया। मतलब थोड़ा ये समझदारी चीज़ है। पैसा के लिए मतलब इसमें दिया है मतलब जो ये तो आपको लेखक का नाम याद रखना चाहिए, जोमो केन्याटा। विदा इसकी पेपर तेन कथा हिंदी में पता होना चाहिए, आप ग्रंथ बोलते हैं मतलब पेपर को। मुख्य विषय मतलब औपनिवेशिक शोषण, अन्याय अन्याय आत्मरक्षा और बुद्धिमत्ता। मुख्य पात्र में मनुष्य, हाथी, शेर, गेंदा, बेछा, मगरमच्छ, लोमड़ी, तेंदुआ और लकड़बंदा। इसका निकल से आता है मतलब कि कहानी का। ये कहानी सिखाती है कि केवल मित्रता के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यदि शक्तिशाली व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नियमों का दुरुपयोग करे तो अपने अधिकारों की रक्षा बुद्धिमानी, एकता और साहस से करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष है। अब हम द डेंजर मतलब द जंगल की कमी देखेंगे। ये मैं आपको चित्र में दिख रहा होगा, सारे जानवर में जो भी अंदर है मतलब कि इसी जो समरी है 1B सीरीज में आपकी, ये आपकी 1B सीरीज में इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैं आपको यहाँ हिंदी में पढ़ाऊंगा मतलब कि, तो ये हिंदी मीडियम चैनल है। कहानी का परिचय। अफ्रीकी राजनीतिक नेता ओ केन्या के पहले राष्ट्रपति जोमो केन्याटा ने द जेंटलमैन ऑफ द जंगल नामक एक कहानी लिखी थी। ये कहानी केन्या में यूरोपीय कानूनों और आयोगों के प्रति लोगों के रवैया को दर्शाती है। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। इस कथा का कथानक दया से कार्य को गलती से कमजोरी समझ लेने से शुरू होता है। एक बार एक हाथी की एक आदमी से दोस्ती हो गई। तेज तूफान के कारण हाथी अपने साथी से साथ छिपना चाहता है, क्योंकि उसके पास केवल उसके और हाथी की ठूंठ के लिए जगह थी। दयालु व्यक्ति ने स्वयं की इच्छा से हाथी को अपनी झोपड़ी से अंदर अपनी ठूंठ रखने की अनुमति दी। दूसरी ओर चतुर हाथी मतलब चालाक हाथी ने मतलब कि जबरदस्ती अंदर घुस गया मतलब वो, और उस आदमी को बाहर फेंक दिया। वह आदमी अपने अपने साथी के साथ बड़बड़ाने और बहस करने लगा। अब आगे हम देखेंगे, तो इसको बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको मैं, जिससे आपको दिख जाए आराम से। परेशान शेर ने धार कर जानना कहा कि इतना हंगामा क्यों मचा है। हाथी ने कहा कि वह अपने एक दोस्त के साथ छोटे से घर से स्वामित्व पर बहस कर रहा था। अपने प्रभुत्व में शेर शांति चाहता था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने मंत्रियों को एक जांच आयोग गठित करने और एक रिपोर्ट प्रदान करने का आदेश दिया। वह आदमी जंगल के राजा की सुखद टिप्पणियों के पसंद हुआ। मिस्टर गेंडा, मिस्टर बपेलो, मिस्टर एलिगेटर द आरटी माननीय अध्यक्ष के रूप में श्री पोस्ट और आयोग के सचिव के रूप में श्री तेंदुए को आयोग में नियुक्त किया गया था। हालांकि उस व्यक्ति की ओर से कोई भी वहां नहीं था। जब उन्होंने आपत्ति जताई तो उन्हें बताया गया कि उनकी तरफ से कोई भी इतना शिक्षित नहीं था कि जंगल कानून की जटिलताओं को समझ सके
उन्हें यह भी बताया गया कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आयोग के सदस्यों को भगवान ने चुना था और उनके दांत और पंजे थे, इसलिए वे पूरी जांच कराएंगे मतलब कि आयोग गवाही सुनने के लिए आगे बढ़ा। श्री आती ने यह दावा करते हुए अपने कार्यों का बचाव किया कि अपने दोस्तों के हितों की रक्षा करना हमेशा उनकी जिम्मेदारी थी, जिसके कारण गलतफहमी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दोस्त ने अपनी झोपड़ी को चक्रवात से उड़ने से बचाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया था। आती ने कहा कि आती ने कहा अब जो आती कह रहा मतलब आगे है उनका कि उसका मानना है कि इसे अधिक लाभदायक उपयोग में लाने के लिए अनिश्चित स्थान पर बैठना अब महत्वपूर्ण है। श्री आती की बातों का जंगल के बुजुर्गों ने समर्थन किया। फिर वह आदमी अपनी कहानी बताने लगा। आयोग ने उन्हें रोका और पूछताछ की कि क्या श्री आती के पदभार संभालने के पहले उनकी झोपड़ी में स्थिति और ने अविकसित क्षेत्र में निवास किया था। वो आदमी हैरान लग रहा था। अंततः आयोग एक निर्णय पर पहुंचा। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह संघर्ष मनुष्य की पुराने जमाने की सोच के कारण पैदा हुई गलतफहमी से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने श्री आदि के आचरण का बचाव करते हुए दावा किया कि उन्होंने मनुष्य के हितों की रक्षा करने का अपना पवित्र कर्तव्य निभाया है। उनका मानना था कि कमरे का सबसे उपयुक्त उपयोग किया जाना चाहिए था। उन्होंने एक ऐसा समझौता किया जो दोनों पक्षों के अनुकूल था, क्योंकि मनुष्य अभी तक विकास के कारण तक नहीं पहुंचा था। परिणाम स्वरूप श्री आती अपनी झोपड़ी में ही रहेंगे, जबकि आदमी से नई झोपड़ी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करने का आग्रह किया गया, क्योंकि वह आयोग के दांतों और पंजों की डरता था। उस व्यक्ति ने सलाह के अनुसार ही किया, हालांकि वही नियति उनका इंतजार कर रही थी। मित्र गेंडा एक नई आगे हम देखेंगे इसका क्या है। एक नई झोपड़ी में चले गए और उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक रॉयल कमिश्नर नियुक्त किया गया। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई गई जब तक कि कभी झोपड़ियां बदल नहीं दी गई। इस समय तक आदमी ने एक प्रभावी विकल्प का उपयोग करने का मन बना लिया था। उन्होंने एक बड़ी और बेहतर झोपड़ी का निर्माण किया, क्योंकि पहले वन राजाओं द्वारा कब्जा की गई झोपड़ियां खराब होने लगी थी। जैसे ही जानवरों ने यह देखा, वे सभी दौड़ पड़े और उपलब्ध जगह पर कब्जा कर लिया। वे जल्दी ही अपने प्रवेश अधिकारों को लेकर झगड़ने लगे। उस आदमी ने मौका देखा और झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे अंदर मौजूद सभी जानवर जलकर खाक हो गए। मतलब शांति मंगी है, लेकिन यह सच से लायक है। अंततः उन्हें पता चला। ये हमने जो हमारी कहानी थी द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, उसी से हमने देखी जो हमारी वन भी थ्री में दी हुई थी, और जो मैंने मतलब आपके लिए देखी वो भी मतलब मैंने सामने आपको दिखाई सुनाई। मतलब कि आपके मतलब चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मतलब आपके जो कमरा नंबर 1 है इंग्लिश डिपार्टमेंट अंग्रेजी विभाग, उसमें अभी आपकी एक नई मैम आई है जिनका मुझे अभी नाम याद नहीं है। मतलब आज ही आई मतलब वो पढ़ाने के लिए इंग्लिश उन्होंने पढ़ाया था। आज ही मतलब इंग्लिश क्लास ली थी ऐसे बच्चों की, हमने ली होगी तो आपको उनका नाम आपने पूछा होगा, लेकिन मुझे उनका अभी नाम याद नहीं है। आपका मतलब में तो डाउट है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मतलब आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो इंग्लिश मैम वो लेगी, इंडियाई मैम है वो लेगी आपकी इंग्लिश क्लास, लेकिन ये अभी आपके डिपार्टमेंट में आ गई नई मैम, तो ऐसे इंग्लिश की तो ये मतलब आप पढ़ाएगी इंग्लिश। सब तो जो मतलब डाउट है आपका उनसे मतलब पूछ सकते हैं हम संपर्क करके कमरा नंबर 1 में जाके, या फिर वो जब क्लास लेने आए तो जैसे आप मतलब इनके इस चैप्टर में जो आपके डाउट आए हैं, मतलब कि कोई नाइन है आपको समझ में नहीं आ रही इंग्लिश में, उसकी हिंदी करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मैम से जाके पूछ सकते हैं मेरी इन नाइन का मुझे मतलब समझ में आ रहा है, आप बता दो मुझे नाइन का मतलब कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा कोई मतलब शब्द का, तो आप उनसे वो पूछ सकते हैं। मतलब कि अब आगे ये आपका एक ग्रुप है यूजर इंफॉर्मेशन ग्रुप BHG ओनली बॉयज ग्रुप, मतलब ओनली बॉयज ग्रुप है। मतलब ये एक बार है, इसमें अभी तक
429 मेंबर जुड़ चुके हैं ग्रुप में। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ें, मतलब कि आपको बस कुछ नहीं करना, आपको उधर और लच्छा आचार्य जी को मतलब व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज लिख के भेजना है कि मैं बीएससी फर्स्ट सेम में तो मतलब मैं इसका मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे आप ग्रुप में ऐड कर दो। मतलब आपको बस इतना ही लिखना है, जैसे ही आपको मतलब ये ग्रुप में ऐड कर देंगे। और आप सीधा में मतलब कॉलेज में जाएँ, आपको ये मिले दोनों, ये आगे मतलब फ़ोटो इनका दिखा कर रखा आपको, ये दोनों। तो इनसे आप जाके कह सकते हैं मैं आपके ग्रुप में अभी तक जुड़ा नहीं हूँ, तो आप ये आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे। मतलब इस ग्रुप में आपके मतलब कि महत्वपूर्ण जानकारी आती रहती है, मतलब कि एक बार से कोई भी कॉलेज में मतलब ऐसे दिन कुछ छुट्टी है, कोई मतलब एग्ज़ाम है, कोई मतलब कि कार्यक्रम है आपके मतलब कॉलेज में, उसकी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी आती रहती है मतलब इस ग्रुप में। मतलब एक प्रकार से आपके लिए यूज़फुल मतलब उपयोगी ग्रुप है मतलब एक प्रकार से। अब अभी तक मतलब कि जैसे अपने बीएससी में से 15 से 2000 मतलब स्टूडेंट होंगे मतलब कि बॉयज़ मतलब, लेकिन उनमें से अभी तक हमें 427 मेंबर जुड़े हुए हैं। मतलब मेरा ये कहना है मतलब अभी स्टूडेंट बचे हुए हैं मतलब कि जुड़ने के लिए बहुत सारे मतलब बाकी मतलब स्टूडेंट। आप अपने दोस्तों को बताएं ग्रुप के बारे में कि वो थोड़ा जुड़े हैं इस ग्रुप में। इस ग्रुप में शायद थोड़ी मतलब जानकारी मिलती रहती है कॉलेज के बारे में। जैसे आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलते अभी ग्रुप में, अभी मिल तो नहीं रहे पे आपको, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी वगैरह मिलती रहती है आपको मतलब कि इससे जो हमारे तुषार दुजर और लचित लंदवाना जी इसके ग्रुप में एडमिन है, और लोग भी हैं मतलब कि मतलब मेन तो मतलब यही है अपने, इनसे थोड़ा आप संपर्क करें। आपको मान लो कोई कॉलेज में कोई दिक्कत आ रही है, कोई असुविधा हो रही है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है कॉलेज में, आपको टीचर से संबंधी मतलब कुछ परेशानी हो रही है, मैं आप क्लास टाइम पे नहीं हो रही है, या फिर आपको कॉलेज में कुछ किसी प्रकार की मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इनसे संपर्क करके मतलब इनके नंबर आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। तो आप इनको मतलब व्हाट्सएप मैसेज करके या तो आपकी जो समस्या वो लिख कर और फ़ोन करके हम बता सकते हैं मतलब आपकी जो समस्या है। थोड़ा मतलब कि सहयोग करें, मतलब ग्रुप में जुड़े मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों को अपने दोस्तों को मतलब इस ग्रुप के बारे में थोड़ा शेयर करें। बोलें कि भाई ग्रुप है आपका, मैं कोई मतलब कॉलेज का वो बना है मतलब कि, तो हमारे बुजुर्ग भैया और लचा नंदाना जी है मतलब जो आपके, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है मतलब बच्चों के लिए। ओनली बॉयज़ ग्रुप है मतलब ये एक प्रकार से बीएससी स्टूडेंट जितने भी अपने मैथ्स बायो के मतलब छठे सेमेस्टर के मतलब सारे बच्चे मतलब इनमें जुड़ सकते हैं। मतलब कैसे नहीं है कि फर्स्ट से हमारे जुड़े मतलब इस ग्रुप में जितने भी मतलब जितने भी मतलब बीएससी के स्टूडेंट हैं ना, फर्स्ट सेम सेकंड फर्स्ट से लेके आखिरी सेम तक के मतलब बच्चे ना, वो भी इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उनकी भी जानकारी मतलब मेन मतलब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब होएंगे, मेन एग्जाम कब होएंगे, मिड टर्म कब होएंगे, मतलब उनकी डेट वगैरह सब डलती रहती है मतलब इस ग्रुप में एक प्रकार से। मतलब उपयोगी मतलब थोड़ा ग्रुप है मतलब थोड़ा एक प्रकार से। आप ज़्यादा मतलब इस ग्रुप को मैं शेयर करूँ दोस्तों को मतलब कि एक प्रकार से। और कोई आपकी कोई मतलब आपको परेशानी है तो मतलब इनसे आप संपर्क करते हैं, आपको ये कॉलेज में मिल जाएंगे आपको, या ज़्यादातर मतलब कॉलेज के बाहर ही मतलब आपको मिल जाएंगे इसे। हमने देखा भी होगा उनको दोनों को। ठीक है भाई, कोई मतलब आपको परेशानी हो तो थोड़ा मतलब इनसे आप संपर्क करें, आपकी परेशानियों का समाधान मतलब मिलेगा इनसे थोड़ा। अभी तक के लिए इतना ही। मैं अभी जो आपकी अगले की मतलब मैंने आपको कहा था, लेकिन जिससे पहले जो मैं आपकी क्लास डाली तो मैंने आपको कहा था कि मैं आज मैं पीजी की क्लास डालूंगा, लेकिन वो पीजी की क्लास में आज रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मतलब किसी कारणवश। तो चार नोट्स तो बन गए हैं, लेकिन उनको फ़ोटो खींच के मतलब कि स्लाइड बनाना थोड़ा टाइम मतलब मैं थोड़ा समय लगेगा मतलब कि थोड़ा वो परफॉर्म करने में, थोड़ा रिकॉर्ड करने में थोड़ा, इसलिए वो जो वीडियो है पीजी की वो कल आएगी मतलब कि आज नहीं आ पाएगी किसी कारणवश। अभी तक के लिए धन्यवाद। मैं आगे की क्लासों में आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।